Good morning student, this is the lecture 5 of foreign exchange rate. Okay, already we have discussed about this chapter, and the next topic of this chapter is components of demand for foreign exchange, or why is foreign exchange demands. Fine, so we have studied what is foreign exchange rate. Now the question arises why we need foreign exchange, okay, or why we are demanding foreign exchange. It can come in 3 marks as well as this can be come in a 1 mark question as well. They can ask you the why foreign exchanges is demanded. Okay, so one is a repayment of international loans. Okay, sometimes the people have taken loan from the international bodies. Okay, suppose जैसे हमने जो है अगर अमेरिका से लोन लिया है, so for repayment of that loan we need dollar instead of rupees. Okay, because we have taken the loan in dollar, तो हमें उसके लिए डॉलर मतलब अपने रुपीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ इन डॉलर. So for the same we are demanding the foreign exchange rate. Investment in rest of the world. Okay, so you want to buy any machinery, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है that is investing in other country or other country is investing in our country. Okay, whether it is in a machinery, railway, any development activities. Okay, so फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड चाहिए. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड और यू वांट टू गो समवेयर एल्स, ओके, so ultimately you need a money for the same. Speculative trading, okay, सट्टा बाजारी के लिए. Okay, so if we are seeing that foreign currency is increasing, so for the speculation, okay, speculation होता है जैसे stock market में भी speculation होता है, that is people are waiting, some kind of people are there जिनके पास shares हैं. Okay, so I'm just taking an example. The one person is having the share. Okay, suppose the person is having 1000 share. तो ये लोग कैसे होते हैं? As they are seeing that market is going up, okay, so they are going to sell their share, and when they are seeing that market is going down, they are going to buy the share. Okay, so this is called speculation. जब आप सट्टा करते हैं, okay, this is legal. Okay, so share जो है वो sell किए जाते हैं when market is up, and when market is down they are buying it. So for the speculative trading you want to do the speculation in foreign country, so उस केस में जो है foreign exchange जो है needed है. Payment of income means rent, interest, wages, because many people in our country are working, or in other country as well they are working. तो बहुत सारे लोग जो हैं we can say that migrate होते हैं from one country to another. Okay, so payment of income की payment करने के लिए भी हमें foreign exchange चाहिए. Grants and donation, if you want to give any donation to any particular organization, any country, तो उसके लिए direct purchases abroad. Okay, if you want directly purchases abroad, it means you are doing the export and import. Okay, so for export and import you need a foreign exchange. Okay, and last one is your imports. Okay, so imports जब हम import कर रहे हैं, okay, तो import करने के केस में जो है हमें foreign currency चाहिए. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एक्सपोर्ट अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तब आपको फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई चाहिए. हेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द डिमांड, why foreign exchange is demanded. Now we are discussing what are the sources, okay, from where the foreign exchange is coming. Export and these are just vice versa. सारे के सारे आपके vice versa. So I'm not going to explain each and everything. Whichever is necessary मैं वो वाला explain कर दूँगी आपको. Exports, investment from rest of the world. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जब आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पर क्या था कि हम कर रहे थे, यहाँ पर आ रही है, तो वी नीड इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. वी कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज. इनकम रिसिप्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ अगेन रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस. तो इस फॉर्म में जो आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज़ अ सोर्स और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दैट इज़ कमिंग इन रुपीज़, तो हमारे पास पैसा आ रहा है. रेमिटेंसेज बाय द नॉन रेजिडेंट्स आर दोज पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेन कंट्री. ओके, तो ये लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं. रेमिटेंसेज मीन्स पेमेंट. ओके, सो
पेमेंट इज़ दैट इज़ पेमेंट बाय द फॉरेन कंट्री पीपल. तो जब फॉरेन कंट्री पीपल जो है दे आर डूइंग पेमेंट, ओके, सो रेमिटेंसेज बाय, तो वहाँ पर दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी. Next is foreign exchange market. Okay, so foreign exchange market is which where we can foreign currencies are bought and sold. जहाँ पर खरीदी और बेची जाती है foreign exchange. This is called foreign exchange. What are some are the functions of foreign exchange market? Transfer function. Transfer means transfer of one currency into another. ठीक है, तो इसमें हम जो है ट्रांसफ़र मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या काम किए जाते हैं. जैसे स्टॉक मार्केट में डिफरेंट वर्क किए जाते हैं, वैसे ही आपके stock exchange market में there are some work, okay, some functions are there. Transfer function, it transfer purchasing power between the country involved in the transaction, जैसे bills of foreign exchange है, बैंक ड्राफ्ट है, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स है. तो ये सारी जो है ये परचेजिंग पावर ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ट्रांसफ़र फंक्शन मीन्स मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र किया जाता है वन कंट्री से दूसरी. क्रेडिट फंक्शन, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या काम करती है? दैट इज़ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड. ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज विल मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट. तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है दिस इज़ प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीपल. सो इट हेल्प्स टू ट्रांसफ़र द मनी. जैसे आपने सुना होगा वेस्टर्न यूनियन जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नाउ ईच एंड एवरी बैंक, अब तो हर एक बैंक जो है वो भी फॉरेन एक्सचेंज का काम करने लग गया है. ठीक है, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग. हेजिंग मीन्स होता है रिस्क. ठीक है, सो रिस्क इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व. जब आप फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो रिस्क इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व. रिस्क कैसे इन्वॉल्व होता है कि आपने जो है अगर 50 पर किया है तो हो सकता है कि उसका रेट बढ़कर 60 रुपीज़ हो जाए, तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी. तो उस रिस्क को भी ये कम करता है. सो व्हेन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल और बाय गुड्स ऑन फ्यूचर डेट एट करंट प्राइजेज आर कॉल्ड हेजिंग. ओके, सो जब एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए? गुड्स को बाय और सेल करने के लिए एक फ्यूचर डेट पर बट करंट प्राइजेस पर. ठीक है, मतलब हमने कहा कि हम जो है दैट इज़ ऑन अगस्त में जो है 1 अगस्त 2020 को आपकी गुड को सेल किया जाएगा और करंट प्राइजेस मीन्स वॉट एवर द प्राइजेज एट दैट टाइम, चाहे वो 50 रुपये हो, चाहे वो 60 रुपये हो, चाहे वो 90 रुपीज़ हो, तो उसे हम बोलते हैं हेजिंग. तो हेजिंग फंक्शन क्या है? ये अवॉइड लॉस करता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट वेरिएशन इन द फ्यूचर. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि फ्यूचर में आपका एक्सचेंज रेट हो सकता है कि आपने डील 60 रुपीज़ में किया है बट आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज़ होकर 80 हो गया, तो यू कैन हैव अ लॉस. 60 से अगर 62 भी हो गया तो अगेन यू मे हैव अ लॉस. ठीक है, तो वहाँ से ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें उस चीज़ से बचाती है. And the last topic of this chapter is kinds of foreign exchange market. We have a 2 type of foreign exchange market, spot market and forward market. Spot market, by the name it has been clear, on the spot. Okay, so this market is on the spot market means जितनी भी receipts of payments है these are made immediately. Okay, ये spot market में function करती है. मतलब today okay I am going to buy this good from you. ठीक है, जब आप बाय करते हैं तो सेलिंग फंक्शन इज ऑल्सो ओवर देयर. एक बाय कर रहा है तो दूसरा उसको सेल कर रहा है. सो स्पॉट मार्केट इज ओके टुडे आई वांट टू बाय द 1000 यूनिट्स फ्रॉम यू एट रेट ऑफ 50 रुपीज़. सो दिस इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट. ये डेली नेचर मार्केट होती है बिकॉज डेली बेसिस पे प्राइजेस जो भी चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डील किया जाता है. डील ओनली इन स्पॉट ट्रांजेक्शन ऑन द स्पॉट, जो भी प्राइजेस डिसाइड होगा उस पर डील करते हैं. ठीक है, वॉट एवर द एक्सचेंज rate is prevalent in the spot market. Okay, and a time of 2 business day is permitted to settle the transaction. Okay, that doesn't mean कि spot market है तो आपने आज डील की, मान लीजिए 7 जुलाई को आपने डील की तो मीन्स 7 जुलाई को ही ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए. नो, इट टेक्स 2 टाइम. आपको 2 बिजनेस डेज दिए जाते हैं टू सेटल दिस ट्रांजेक्शन. फाइन. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज फॉरवर्ड मार्केट. फॉरवर्ड मार्केट इज जिसमें सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो फ्यूचर डेट पर होता है. ओके, सो वॉट एवर द प्राइजेज एग्रीड अपॉन टुडे. ठीक है, आज जो है ए ने बी से प्रॉमिस किया कि ओके आई विल 80 रुपीज़ पर जो है हम जो है गुड्स को बाय करेंगे.
ठीक है. सो सपोज नाउ द प्राइस इज 70 और 90 और 6 दैट इज 79 और 81, चाहे इतना सा भी चेंजेस है तब भी आपका जो मार्केट में पिकअप होगा दैट इज ओनली ₹80. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट. फ्यूचर डेट एट रेट एग्रीड अपॉन टूडे. जो हमने आज डिसाइड किया, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट डजेंट मैटर. आपने जो आज डिसाइड किया है उसी में ट्रांजेक्शन होगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.